Namaste, dear children. Here I am back with my third video of chapter Manufacturing Industries. In my previous video, I have discussed with you in detail agro-based industries. In this video, we are taking mineral-based industries. Mineral-based, the industries which are based on minerals for their raw material. So first industry which we are taking in detail is iron and steel industry. Iron and steel industry is called a basic industry. Why basic? Because it's finished products. Iron and steel industries finished products are used as raw material by other industries. All industries, heavy industries, light industries, medium weight industries, all industries, they depend on iron and steel industries for their machines and tools. Whether any product has iron or not, this is my pointer made of paper, hard paper, it does not have iron at all. But the machines in which it has been made is made of iron and steel. So the industries, this industry is called a basic industry. Okay. This industry is also known as heavy industry. Why heavy? Because it's raw material and finished products. Both are heavy in nature. Okay. Its raw material are iron ore, coal, limestone, manganese, nickel. All these raw material are very heavy, bulky, and that is why it is known as heavy industry. Not only raw material, its finished products are also equally heavy. So it is known as heavy industry. So I hope you can answer these two small questions: why iron and steel industry is called a basic industry, or why it is called a heavy industry. Now, processes of manufacturing steel. Steel बनाने में क्या प्रोसेस है फ्रॉम आयरन ओर टू स्टील? तो सबसे पहले बेटा क्या होता है? आयरन ओर जो रॉ मटेरियल है, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू अ स्मेल्टर. ये क्या है? ब्लास्ट फर्नेस. ब्लास्ट फर्नेस में इसको लाया जाता है. यहाँ पर इट इज स्मेल्टेड. स्मेल्टेड मीन्स फर्स्ट स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन होती है. यहाँ इसे कोल एनर्जी देता है और ये मेल्ट होता है. वाइल इट इज मेल्टिंग, लाइमस्टोन इज एडेड. लाइमस्टोन को ऐड किया जाता है. अब इस लाइमस्टोन का क्या रोल है? Limestone removes all the impurities of this iron ore. यहाँ पर डालते ही slag is removed. Slag means impurities. तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन हो जाता है. अब हमारे पास एक स्टेज का क्लीन आयरन आ जाता है. अब इस आयरन को डाला जाता है बड़े बड़े मोल्ड्स में. इन मोल्ड्स को क्या कहते हैं? पिग्स. बड़े बड़े मोल्ड्स होते हैं, इसमें ये आयरन डाल दिया जाता है. इसे पिग्स बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो आयरन होता है इसको कहते हैं हम पिग आयरन. पिग इसके मोल्ड्स को बोलते हैं और यहाँ पर जो आयरन तैयार हो गया ये पिग आयरन कहा जाता है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में दोबारा इसकी स्मेल्टिंग होती है. यहाँ पर हम फिर से इसमें ऐड करते हैं लाइमस्टोन. लाइमस्टोन ऐड करते हैं, इसको प्यूरिफाई करते हैं और साथ में ऐड करते हैं दूसरे मिनरल्स लाइक निकल, मैंगनीज, क्रोमियम, और ये अब बन जाता है. अब हमको जो चाहिए वो बन गया स्टील. अंडरस्टैंड? तो स्टील इज formed and now steel can be converted in any shape. So these steps you have to remember. First of all, iron ore transported to blast furnace. Here it is melted with the coal as a energy. Limestone is added.
slag is removed or impurity is removed, then it is poured into pigs. Pigs are the big molds, pig iron is made, then again it is smelted. यहाँ पर दोबारा लाइमस्टोन डालेंगे, दोबारा प्यूरिफिकेशन करेंगे और इस समय प्यूरिफाई करने के बाद इसमें निकल, मैंगनीज, क्रोमियम ऐड करेंगे और स्टील बन के तैयार हो जाएगा. और ये स्टील ही हम पढ़ रहे हैं, हाउ टू मैन्युफैक्चर स्टील. Okay, so I hope you know now what is the process of manufacturing of steel. Next, there are two types of steel plants. Small, which are called mini steel plants, and integrated steel plants. We have 10 integrated steel plants in India. Okay, out of these 10 integrated steel plants, one is under private hand, that is TISCO, Tata Iron and Steel Company, and rest 9 are under public sector. Public means government, they are under government sector. अब नाम से ही बेटा आप डिफरेंस करेंगे. मिनी, they are small iron and steel industries. Integrated means large, where everything from smelting to manufacturing of steel is done under one big complex. Mini steel plant uses electric furnace. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड फर्नेस होते हैं. ये यूज करते इंटीग्रेटेड यूजेस ब्लास्ट फर्नेस. ओके, मिनी स्टील प्लांट यूजेस स्क्रैप एंड स्मॉल दिस रॉ मटेरियल जो होता है, स्क्रैप हो गया, स्पॉन्ज आयरन हो गया, ये रॉ मटेरियल यूज़ करता है. इंटीग्रेटेड यूज़ करता है आयरन ओर, लाइमस्टोन, मैंगनीज, कोल एट्सेट्रा. इनका जो प्रोडक्शन होता है ये कुछ स्पेसिफिकेशन, सम लिमिटेड स्पेसिफिकेशन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. एंड दे मेक एवरीथिंग. Okay, from rods to sheets to everything integrated steel plants makes. Okay, SAIL, Steel Authority of India Limited. जितना भी हमारा स्टील बनता है पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, उसकी मार्केटिंग किस नाम से होती है? SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. और जितना स्टील टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से बनता है उसकी सेल होती है टिस्को नाम से. ठीक है, टिस्को एंड सेल फॉर पब्लिक अंडरटेकिंग इंडस्ट्रीज. Now the most important question which I am telling you from my previous video, जिस भी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें उसकी लोकलाइजेशन के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन आता है. क्यों आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकलाइज्ड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू? छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको मालूम होगा इंडिया के सेंट्रल हाईलैंड्स के ईस्ट में एक प्लेट्यू है विच इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. और मिनरल्स भी कौन से? जो आयरन और स्टील के रॉ मटेरियल हैं. वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट लो कॉस्ट, हम यहाँ पर एक और वर्ड डाल सकते हैं, एट लो कॉस्ट. यहाँ पर रॉ मटेरियल कौन कौन से? आयरन ओर, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, मैंगनीज, ये यहाँ पर मिलते हैं. अच्छा, वन थिंग मोर यू शुड नो दैट इन द रॉ मटेरियल का क्या रेशियो चाहिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए? 4:2:1. 4 क्या है इसमें? आयरन ओर. 2 क्या है? कोल. और 1 क्या है? लाइमस्टोन. ठीक है, iron ore is to coal is to limestone and some amount of manganese. These are some raw material required for this industries which are found in Chota Nagpur plateau. All raw material is heavy and bulky. सारा रॉ मटेरियल हैवी एंड बल्की है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सो मच, डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड इट is costly also to transport. So industries are localized in the Chota Nagpur plateau. Cheap labor, पूरी हमारी बिहार, उड़ीसा, यूपी, वेस्ट बंगाल की चीप लेबर यहाँ पर है. वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन होम मार्केट.
अपने डोमेस्टिक मार्केट ही बहुत ज़्यादा है। जितना ये स्टील हम प्रोड्यूस करते हैं, इट इज़ वी हैव अ गुड internal domestic market for it. Okay, so these are the 1 2 3 4 factors for its localization in Chota Nagpur plateau. Next topic is, what are the problems faced by this industry? Iron and steel industry की क्या problems हैं? Problem नहीं है high cost and limited supply of coal. Coal is expensive. We have iron ore, we have limestone, manganese, but coal की थोड़ी सप्लाई कम है and it is costly also. तो remember, learn कर लो by heart. High cost and limited supply of coal, low output of labor. ये तो हम सब इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम में डाल सकते हैं. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सब में डल सकते हैं, जैसे लो आउटपुट ऑफ लेबर. हमने उधर टेक्सटाइल से लेकर जूट से लेकर सब में डाला है, शुगर इंडस्ट्री में भी. इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ये भी हमने सब में डाला है. याद करो, पावर सप्लाई इज इरेटिक करके. इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? इस एनर्जी की सप्लाई हमारे पास थोड़ी इरेगुलर है, कम है. एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वी डू नॉट हैव अदर बेसिक फैसिलिटीज़. इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास अच्छी रोड, बिल्डिंग्स वगैरह, ये चीज़ की भी कमी है. तो these are the 4 problems faced by iron and steel industry. Last small topic in iron and steel industry is, in recent times, आज के टाइम पर this industry has got a big boost. किसने दिया इसे बूस्ट? Liberalization and FDI. Liberalization and foreign direct investment has given boost to this industry. Liberalization क्या होता है बेटा? Liberalization means liberal policies of trade of the government. गवर्नमेंट की जो ट्रेड पॉलिसी है बहुत लिबरल हो गई है. लिबरल का मतलब without any barriers. We can market our goods in any country. हम कहीं भी बेच सकते हैं. एंड FDI means foreign direct investment. हम दूसरे देश के इंडस्ट्रीज को अपने देश में अट्रैक्ट करते हैं by giving them many benefits like subsidies. Initially we do not take any tax of water or electricity from them so that they invest money in our country. So liberalization, so simple 1 mark question, what has given boost to this industry in the recent times? Liberalization and FDI, that is foreign direct investment. You should know that the production and consumption of iron and steel is an index of development of a country. जिस देश में ये आयरन और स्टील का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वो कंट्री उतनी ही डेवलप कहलाई जाती है. वाई इज़ इट सो? क्योंकि जितना आयरन और स्टील प्रोड्यूस होगा तो बाकी इंडस्ट्रीज भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेंगी, बिकॉज इट इज़ द इंडस्ट्री विच इज़ बेसिक, विच इज़ सप्लाइंग ऑल द मशीन्स एंड टूल्स टू अदर इंडस्ट्रीज. So it is very rightly said that production and consumption of iron and steel is an index of development of a country. Okay, so with this we have finished our iron and steel industry. Our next industry after iron and steel industry is aluminium smelting. Aluminium smelting industry is again mineral based industry. It is second largest metallurgical industry in India. Second number पे आती है after iron and steel. It is used as a substitute of steel. It is used as a substitute of steel. अब कई जगह पर, क्योंकि आयरन की डिमांड तो हर जगह है, अभी हमने पढ़ा इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आयरन और स्टील की रिक्वायरमेंट ना हो. तो अब कहीं कहीं पर जहाँ पर हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर अब हम एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहे हैं.
आयन की कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर हम इसको जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, वेयर एल्यूमिनियम इज सब्सटीट्यूटिंग स्टील. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम विच हैज़ मेड इट अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील? Number 1, it is very light in weight, resistant to corrosion, इस पे जंग नहीं लगता, good conductor of heat, it is malleable, it is ductile. और क्योंकि ये लाइट इन वेट है, थोड़ा हल्का मेटल है, बट व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ. ओके, सो जो इसकी थोड़ी सी जो वीकनेस है लाइट इन वेट वाली और थोड़ा सा हल्का मेटल है, उसको ये दूसरे मेटल के साथ मिक्स करते हैं, देन इट बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू सब्सटीट्यूट आयरन. So that is why because of these properties only it is used in aircraft industries, in making utensils, in making wires, being malleable and ductile, it is converted into wires. Okay, so why it is used as substitute of steel? Because of these 4 reasons. It needs 2 things for its localization, only 2 things. Where this industry gets concentrated or localized, only 2 factors are there. Number 1, availability of raw material at low cost. ये तो हमने पढ़ा ही है, जहाँ raw material होगा वहाँ ये establish होगी कोई भी industry. और रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग. ओके, तो हाउ एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड और द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम. आपको पता है कि इसका ओर को क्या बोलते हैं? द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट. बॉक्साइट इज द ओर from which aluminium is extracted. So what is the process from bauxite to aluminium? सबसे पहले एक क्वेरी से बॉक्साइट माइन किया जाता है. अब आप बोलेंगे व्हाट इज द क्वेरी? क्वेरी और माइन दोनों एक ही चीज़ है. माइन होती है जिसमें हम बहुत गहराई में जाकर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. क्वेरी मीन्स when the minerals are available in the shallow depth very close to the earth surface. तो बॉक्साइट हमेशा अर्थ सरफेस के काफ़ी पास ही मिलता है, तो उसे हम क्वेरी बोलते हैं. ठीक है, क्वेरी से पहले बॉक्साइट को माइन किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट करके इसे हम एल्यूमिनियम रिफाइनरी में लेकर आएंगे. यहाँ से फर्स्ट स्टेज में इसकी क्लीनिंग होगी और एल्यूमिना बनकर आता है. ठीक है, एल्यूमिना, अभी एल्यूमिनियम नहीं बना, इसकी अभी थोड़ी सी रिफाइनिंग हुई है बॉक्साइट की और एल्यूमिना बन जाता है. एल्यूमिना को फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टर में हम क्रायोलाइट, एक मेटल है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है. क्रायोलाइट एक मॉल्टन मेटल है, उसमें हम एल्यूमिना को डिज़ोल्व करते हैं और एल्यूमिना डिज़ोल्व करते ही एल्यूमिना की सारी इम्प्योरिटीज़ हट जाती हैं, तो और बन के तैयार होता है एल्यूमिनियम. ठीक है, तो क्रायोलाइट क्या है? क्रायोलाइट इज अ मॉल्टन मेटल विच एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इसकी प्योरिफिकेशन में काम आता है और इस एल्यूमिनियम बनकर तैयार हो जाता है. इस प्रोसेस में बॉक्साइट से लेकर एल्यूमिनियम बनने तक कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट लगती है? अगर हम 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट लेते हैं तो उसमें से जस्ट 4 का आधा 2 टन्स ऑफ एल्यूमिना बनेगा. कितनी इम्प्योरिटीज़ है, और फिर उससे केवल 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम बनता है. तो इतने प्रोसेस में द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज 18,600 किलोवाट आवर. इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. इसीलिए इसका जो एक मेन इनपुट है इसके लोकलाइजेशन में वो है रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि अभी हमने कुछ इंडस्ट्रीज में पढ़ा था इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई इज इरेटिक. ये नहीं होना चाहिए इस इंडस्ट्री में. तो वी हैव रेड अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन व्हाई इट इज गेनिंग as a substitute of steel because of these properties, 2 factors for its localization, and what is the process of manufacture of aluminium. Okay, ये आपको फ्लो चार्ट में बनाना है. नो नीड टू राइट सेंटेंसेस, जस्ट राइट दीज 4
words, keywords, and amount of electricity required. Okay, so this was about our aluminium smelting. Okay, next is chemical industry. Chemical industry, आपको नाम आपने बहुत सुना होगा, केमिकल्स, इसमें केमिकल है, सब प्रोडक्ट्स में केमिकल्स हैं. केमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, अभी बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है. इंडिया में ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. कुछ केमिकल्स को यूज़ करके हम जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे भी बन जाते हैं और एक्सेसिव यूज़ इनका हमारे लिए ख़राब भी हो सकता है. ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री पर अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री. ओके, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 3% टू द GDP ऑफ द कंट्री. सोचो कितनी नई इंडस्ट्री है और कितनी छोटी इंडस्ट्री, छोटी मतलब साइज में बड़ी है लेकिन अपकमिंग इंडस्ट्री है, और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 3% to the GDP, gross domestic product, total income of the country. It has a big share in the GDP of the country. In terms of size में अगर देखा जाए तो it is third largest in Asia, बहुत बड़ी बात है, commendable, and 12th in the world. पूरे वर्ल्ड में हमारा नंबर इसके साइज के अकॉर्डिंग हम 12th आते हैं. बहुत अच्छी हमारी पोजीशन है इसके साइज में. वी प्रोड्यूस बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स. ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से होते हैं, जो पेट्रोकेमिकल्स के, जिसको हम पेट्रोलियम और उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक हमने पढ़ा था कॉटन और जूट में. सिंथेटिक फाइबर इज गिविंग कॉम्पिटिशन टू दीज नेचुरल फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, डाई, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, इन सब वैसलीन, एंटीसेप्टिक्स, उसमें ये यूज़ होता है. तो ये सब चीज़ें जो हम ऑर्गेनिक केमिकल से बनाते हैं, आज हम अपने डेली लाइफ में उन्हें बहुत यूज़ कर रहे हैं. ओके, दूसरी तरफ है इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइज वगैरह आता है. इससे हम फर्टिलाइज़र, अगेन सिंथेटिक फाइबर, फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो कि वन ऑफ द मेन इनपुट है हमारा फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में जो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, इट इज़ ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर्स. ओके, सो एंड सिंथेटिक फाइबर, जितने हमारे सोप है, डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर्स, सब में ये केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं. तो केमिकल इंडस्ट्री बड़ी अपकमिंग इंडस्ट्री है बेटा. इतने प्रोडक्ट्स हम जो आज अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम कॉस्मेटिक्स टू ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, कितनी जगह पर ये केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं. दिस इंडस्ट्री इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर. ये खुद बनाती है और उन्हीं को यूज़ करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है. जैसे कुछ बेसिक केमिकल्स हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बेसिक केमिकल्स वही इंडस्ट्री बना रही है और उन्हीं केमिकल्स को यूज़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है. तो ये इंडस्ट्री अपनी ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कंज्यूम करती है, कुछ बेसिक केमिकल्स को यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है. तो हम कह सकते हैं दिस इंडस्ट्री इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स. ठीक है, सो दिस इंडस्ट्री इज़ गेनिंग very popularity in the country, in the world also. All over the world, we are now using chemicals for making diverse products which we use in our daily life. Okay, so this was about our chemical industries. Okay, now our next industry is fertilizer industry and cement industry. Both are mineral based industries. First, fertilizer industry. India produces almost all type of fertilizers in the country. We produce nitrogenous fertilizer, phosphatic fertilizer, ammonium phosphate, and complex fertilizer, which is a combination of nitrogen, phosphate, and potash. So you should know what do you understand by complex fertilizer. Complex fertilizer is a combination of nitrogenous fertilizer, phosphate,
and potash. Okay. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा बूस्ट कब से मिला? ड्यू टू इट्स ग्रीन रेवोल्यूशन. जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को 5 मॉडर्न इनपुट्स दिए. इसमें HYVC था और केमिकल फर्टिलाइज़र था. तो केमिकल फर्टिलाइज़र को जो बूस्ट मिला इस इंडस्ट्री को, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से ही मिला. उससे पहले इतना ज़्यादा हम नहीं यूज़ करते थे फर्टिलाइज़र को. तो इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद दिस इंडस्ट्री स्प्रेड इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री. पहले क्या होता था कि जब किसान खेती करता था तो ज़मीन खोदी, प्लोइंग करी, थोड़ा बहुत खाद डाला, खाद चाहे वो मैन्योर हो, गोबर का हो, फर्टिलाइज़र बाज़ार से गए, कोई भी बोरी खरीद के ले आए, ठीक है. लेकिन अब के टाइम का जो फार्मर है वो पहले सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजता है. सॉइल टेस्ट होती है. जैसे अच्छा सपोज करो, तुम अपने से कंपेयर करो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग गिडीनेस, मुझे लेजीनेस, थकान हो रही है, फटीग हो रहा है, तो मैं ब्लड टेस्ट के लिए जाऊँगी. ब्लड टेस्ट में आया इसमें आयरन की कमी है तो आई विल ईट आयरन कैप्सूल्स. अगर मेरे में कैल्शियम की कमी है तो मैं कैल्शियम की दवाई खाऊंगी. उसी तरीके से पहले जो नहीं होता था, जैसे सॉइल टेस्टिंग, कोई भी सॉइल हो खोदा, जो मर्जी बोरी खाद की लाई और डाल दी. लेकिन अब सॉइल टेस्टिंग के लिए जाती है और पता चलता है द सॉइल इज डेफिसिट इन नाइट्रोजनस कंटेंट और फॉस्फेटिक कंटेंट और अमोनियम कंटेंट. किस में सॉइल डेफिसिट है, किस मिनरल में, तो उसी तरीके का, उसी प्रकार का फर्टिलाइजर सॉइल में डाला जाता है. सो ड्यू टू दिस न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, दिस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज इन ग्रेट डिमांड. और जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड लैंड इज सेम एज वी हैव गॉट इन 1947, इट इज़ अ फिक्स्ड एसेट. हमको प्रोडक्शन इसी लैंड से बढ़ाना है. तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर इनपुट. इसको डाल के ही हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, देश में फूड सिक्योरिटी एश्योर कर सकते हैं. वी हैव 10 fertilizer plants which are big integrated fertilizer plants which are all under the public sector, government sector. Okay, so this is about our fertilizer industry. Next industry is cement industry. Cement का तो किसको रोल नहीं मालूम. इन आवर ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, चाहे घर हो, बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, सीमेंट इज रिक्वायर्ड. इट इज़ वन ऑफ द मेजर इनपुट फॉर आवर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेट अप इन 1904 इन चेन्नई. इसको बेटा याद करना है, ये तो लर्निंग है. 1904 चेन्नई में पहला हमारा सीमेंट इंडस्ट्री का प्लांट आया था. यूज सबको मालूम है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन नीड सीमेंट एज इट्स मेन इनपुट. इसके रॉ मटेरियल्स अभी हैवी एंड बल्की हैं, जिसमें लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम आर इट्स मेन रॉ मटेरियल. This industry has seen a rapid increase in the recent times. After 1990, 89-90, इस इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिला, ये इंक्रीज हुई. क्यों? क्योंकि ड्यू टू डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन. डी कंट्रोल ऑफ प्राइस का मतलब क्या? अब गवर्नमेंट ने लिबरल किया. अभी हमने आयरन और स्टील इंडस्ट्री में लिबरलाइजेशन पढ़ा था. गवर्नमेंट ने लिबरल की ट्रेड पॉलिसीज, नो कंट्रोल ऑन प्राइस. जिसको अपना सीमेंट बनाओ, जिसको लगता है मेरी क्वालिटी अच्छी है, उसको महंगा बेचो, और कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर प्राइस कंट्रोल नहीं रहा. और डिस्ट्रीब्यूशन में भी गवर्नमेंट ने इसमें बिल्कुल पीछे हट गई कि जहाँ मर्जी आपको लगता है डिस्ट्रीब्यूट करो, बेचो, मार्केट करो. इससे इन दो रीजन से, डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ गिवन रैपिड इंक्रीज टू दिस इंडस्ट्री. एंड द क्वालिटी ऑफ इंडियन सीमेंट इज सो गुड, इम्प्रूव्ड एंड गुड क्वालिटी. इससे हमारी एक रेडिली अवेलेबल मार्केट है दूसरे देशों में. अच्छा, इंडियन सीमेंट है, जैसे हम
टेक्नोलॉजी में देखते हैं, अच्छा कैमरा निकॉन का, कैनन का, जापान का है, और ये खरीद लो, कुछ सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमें उनकी टेक्नोलॉजी पर विश्वास है. इन द सेम वे द क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज so good, Indian cement improved quality that it has a readily available market in Asian countries, East, South and Middle East Asian countries and Africa. So this is about the cement industry. You should know only these 4-5 points in this cement industry. Okay, after cement industry, we are left with two mineral-based industries, automobile industry and information and technology. First, automobile industry. Automobile industry. All the different types of vehicles you see on the Indian roads comes under automobile industries. Two-wheelers, three-wheelers, four-wheelers, multi-utility vehicles, everything comes under automobile industry. This industry has increased many times, a quantum jump this industry has experienced in last few decades. Gone the days of Fiat and Ambassador on the Indian roads. केवल 2 गाड़ियाँ चलती थी इंडिया में, 2 तरह की कार, एक स्कूटर होता था, बजाज सुपर, बजाज चेतक. आज के टाइम पर आप देखिए, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टू व्हीलर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी से बनी हुई हर 6 महीने में एक कार लॉन्च हो जाती है. इट इज़ ओनली ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड FDI. हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी पढ़ा, उससे बाद में भी पढ़ा, अभी सीमेंट इंडस्ट्री में लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड, लिबरल ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट in the country has given boost to this industry, automobile industry. हमारे टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है, गियरलेस गाड़ियाँ, टू व्हीलर गियरलेस, कार्स आ गई हैं गियरलेस, सब गाड़ियाँ जो आ रही हैं, इट इज़ ओनली ड्यू टू लिबरलाइजेशन. वी कैन डू ट्रेड विद एनी कंट्री, वी आर फ्री टू डू ट्रेड, वी आर लिबरल. गवर्नमेंट हैज़ मेड इट्स पॉलिसी सो लिबरल that we can do business with any country, we can import new technology, we can make any type of new automobile with the help of imported technology, and foreign direct investment has given us the required capital, foreign investment. So this industry has seen many times jump in last some decades. This industry is concentrated everywhere in the country, mainly in the capital cities, Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, etc. Okay. Now our next industry is information technology, IT. सबसे ज़्यादा नाम सुन रहे हो, IT का नाम सुन रहे हैं. IT क्या है? इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का जो तरीका है, हाउ टू मेक दिस इंफॉर्मेशन available and reachable to everyone. Information technology and electronic industry. Electronic industry produces all type of these gadgets, TV, telephone, radars, computers, pagers, etc., which helps us in communication. So this industry, the electronic capital of India is Bengaluru. बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल माना जाता है. आपको मालूम है, मोर देन 6,000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन बेंगलुरु. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. अदर सेंटर्स हैं मुंबई, पुणे, चेन्नई एंड हैदराबाद. What is the role of this industry in the Indian economy? Employment generation. इतनी इंडस्ट्रीज जब अकेले बेंगलुरु में है, 6,000 से ऊपर IT इंडस्ट्रीज, एंड देन इन दीज सेंटर्स व्हाट इज देयर रोल? दे हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू आवर यूथ, टू आवर यंग एजुकेटेड talented youth, employment generation, and 30% of seats are given to women employees. Women are also given not reservation, but they keep 30% seats. They want women to be employed in this information technology. Foreign exchange earner, it
increases our much needed foreign exchange by its BPO sector. What is BPO? Business Processes Outsourcing. Business Processes Outsourcing. ये एक ऐसा तरीका है बेटा जिससे हम ज़रूरी नहीं कि हम अपना प्रोडक्शन अपने ही देश में करें. बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्स करना. पहले आपको केवल आउटसोर्स का मतलब पता होना चाहिए. आउटसोर्स क्या होता है? आउटसोर्स मतलब जैसे कि आज अचानक से मुझे पता चला मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहे डिनर पे, मैं थोड़ा सा खाना आउटसोर्स कर लूँगी. मैं एक वेजिटेबल, एक ड्राई वेजिटेबल, एक स्वीट डिश बाहर से मंगा लिया. मैंने फटाफट चपाती और राइस बनाए और मैंने डाइनिंग टेबल लेकर दिया. आई हैव आउटसोर्स्ड माई फूड. मैंने बाहर से मंगा लिया. इसी तरीके से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है? जरूरी नहीं है कि हम सारा काम अपने ही देश में करें. हम कुछ काम किसी और देश से जहाँ पर वो काम सस्ते में हो जाता है उनसे करवा लेते हैं और अपने देश में लाकर उसे असेंबल कर लेते हैं. कई सारा काम हम दूसरे देशों से करवा लेते हैं बाहर से और फिर हम अपने देश में उसको असेंबल कर लेते हैं. और इस तरह के काम को जिसमें हम सारा प्रोडक्शन एक्टिविटी अब एक ही जगह पर ना करें जैसे पहले होता था. सारा प्रोडक्शन एक ही जगह पर एक ही देश में होता था. अब तो प्रोडक्शन इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. So by BPO sector, we are also earning a great amount of foreign exchange for the country. So आपको बेटा ये 3 पॉइंट ज़रूर याद करने हैं. The role of information technology industry in the Indian economy. It generates employment. 30% seats are given to women employees and it earns foreign exchange for the country through its BPO sector or business processes outsourcing. So here we have finished our all mineral based industries. Okay, so please watch it carefully because it is a long topic. Thank you so much. Have a nice day.